माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 2, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 3, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Law and Justice as mentioned against my name in today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4, माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख उल्लिखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name as number 5 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 6, माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of External Affairs as mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 7, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name, serial number 7, on today's revised list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 8, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Chairperson, sir. With your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Defence as mentioned against the name of my colleague, Shri Sanjay Seth, as per today's revised list of business. Thank you. थैंक यू सर। आइटम नंबर 9, माननीय श्रीमती अन्नपूर्ण देवी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 73A के प्रावधानों के अनुसरण में मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट अनुदान मांगों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 365वीं रिपोर्ट की सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना वक्तव्य सदन के पटल पर रखती हूँ। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 10, श्रीमती अनुप्रिया पटेल मैडम। Chairman, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 149 and the 161st reports of the Standing Committee of Health and Family Welfare on the implementation of the Pradhan Mantri TB Mukta Bharat Abhiyan pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare. थैंक यू मैम। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। बजट पर चर्चा है, आप अपने सारे विषय उस समय उठा सकते हैं। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दे। प्राइवेट मामले, बिजनेस भी आज बैठा दीजिए। आप अपनी
अपनी जगह पे बैठ जाइए। आप अपनी अपनी जगह में बैठ जाइए। अपने आगे कार्यवाही चलाना है। आप अपने अपने जगह में बैठ जाइए। आप बैठिएगा आगे कार्यवाही चलाना है। आप नहीं चाहते कि आप बोले, आप नहीं चाहता कि आपको मौका मिले बोलने के। हम आपको मौका देना चाहते हैं बोलने के लिए। आप नहीं चाहते कि कार्यवाही आगे चले। यू डोंट वांट द बिजनेस, यू डोंट वांट द हाउस टू रन इट्स बिजनेस। No, please, I'm requesting you once again. You are not supposed to exhibit these posters. This is against the rules. ये नियम के विरुद्ध है। ये आप ऐसे प्लेकार्ड्स लेके आके नहीं दिखा सकते हैं। नहीं, आपको कई बार बोल चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं कि you cannot exhibit, you cannot bring exhibits. Kindly put down the exhibits. Let the house run. Let the house run. Please put down the exhibits. Go back to your seats, please. I'm again requesting you. आप नहीं चाहते हैं कि हाउस चले। You don't want the house to proceed. You don't want the business of the house to proceed peacefully. नहीं, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। I can't run the house like this. I cannot run the house like this. Kindly, I'm requesting you once again. Please go back to your seats. Put down the placards. Put down the placards. Do not show them. This is not correct. आप अगर ऐसा करते हैं तो हाउस नहीं चलेगा, मुश्किल होगा, मेरे को चलाना मुश्किल होगा। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 9 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। थी उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया। क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी, जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और
कानून यानी बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। आदरणीय सभापति जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, हमने 370 का हटाने के लिए संशोधन किया। हमने ऐसे कानून भी बनाए। जब देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जहां जो माइनॉरिटीज है, वो जब भी संकट में आएगी तो उनकी चिंता ये देश करेगा। गांधी जी ने का वचन था, जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया। हमने सीएए ला करके उसको पूरा किया। वो कानून हमने लाया, हमने किया है और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए और हमने एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं और समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि वो सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, हमने देश हित में किया हुआ पुण्य है। और इसलिए हमें जो सवाल पूछते हैं आदरणीय सभापति जी, यहां संविधान पर अनेक भाषण हुए, अनेक विषय उठाए गए। हर एक की अपनी मजबूरियां होगी, राजनीतिक कुछ न कुछ करने के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमारा संविधान सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के संवेदनशील रहा है वो है भारत के लोग, वी द पीपल, भारत के नागरिक। संविधान उनके लिए है, उनके हितों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, उनकी गरिमा के लिए है और इसलिए संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा निर्देश देता है और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो, उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला
लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। आदरणीय सभापति जी, जरा कोई मुझे कहे आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को क्या उसे टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हमने जी जान से उसे जुटे रहे। उसका मजाक उड़ाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन का गरिमा ये हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे, हम आगे बढ़ते चले गए और तब जाकर के ये सपना साकार हुआ। माताएं बहनें खुले में सोच जा रही थी, या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद, और आपको कभी पीड़ा नहीं हुई। और उसका कारण यह था कि आपने गरीबों को और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है, आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं, वरना आप इसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, इस देश की 80% जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही। क्या मेरा संविधान हमें रोकता था? क्या संविधान तो ये चाहता था कि सामान्य मानवीय की सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। आदरणीय सभापति जी, ये काम भी हमने बड़े समर्पण भाव से आगे बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाना और धुएं से आंखें लाल, कहते हैं कि